Maths Master Teacher at Vedantu. So I hope my pirates are doing good, staying safe and taking care of yourself. Also enjoying learning with your captain, right? So guys, very warm welcome on Maths Pirates. If you're coming for the first time, hit the like button and subscribe to the channel. Alright guys, so let's boom R.D. Sharma questions on the chapter Understanding Quadrilaterals. So guys, this is question number 1 which I have picked up from the book. That is, classify the following curves as open or closed. Alright, so you have to classify. Means, इसको बताना है that the following figures are open or closed. Okay, let's do that. So we know that open curve is a type of curve which is open, right? Whom end and start point are different, or we can say not colliding with each other. So that is open curve. So first figure, can you see the starting point and the end point are different, not same. So that is why that is open curve. Yes. Now let's talk about closed curve. What do we mean by closed curve? So a closed curve is a type of curve where the end and the start point are same, or we can say they are joined to each other. So that is open and closed curve. हो गया ना सिंपल. तो ये हो गया हमारा closed curve. ठीक है, आ जाओ. Now this figure, third figure. Everybody, can you see this figure? I can clearly see that it is joined from here, but it has these two different points. Okay. Can we say that this is closed? Yes. That is why, because at this point both the end and starting point is same at this point. That is why this is closed curve. Now everybody see this. It is clearly been seen that in this figure it is open curve, because end and starting point are different, right? Also in figure S, can you see the start point and the end point are different, not same. That is why it is open curve. Now this curve, it is clearly being seen that this is closed curve. Okay, I hope you have boomed this question. Yes, I hope everybody is clear with open and closed curve. How to classify them? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. फटाफट से इसे बूम कर दो. How many diagonals does each of the following have? First is a convex quadrilateral. What is a convex quadrilateral? पढ़ा तो था हमने. The quadrilateral in which all the sides are less than 180 degree, है ना? So let's boom it. So we have n-sided convex polygon that has n minus 3 divided by 2 diagonal. Everybody, I hope you have watched the session R.S. Agarwal in which we have discussed about this formula. This is the formula to find out the number of diagonal in a particular polygon. For example, you have to let me know in which quadrilateral how many diagonals are there. So n will be 4. So 4 minus 3 divided by 2 will be the number of diagonals in that quadrilateral. Okay, so here the question is, a quadrilateral has, we know n is equal to 4. N is nothing but the number of sides. So we have 1, 2, 3, 4. 4 sides. Okay, so 4 minus 3 divided by 2 is equal to 2. That is the formula, n minus 3 divided by 2. Okay. So therefore, how many diagonals can be formed in the quadrilateral? 2. That is A to C and B to D. ठीक है. अब second part था question में, a regular hexagon. यार hexagon क्या था? The hexagon was a type of polygon which has 6 sides, है ना? तो n कितना हो गया हमारा? 6. Yeah. So 6 minus 3 divided by 2 is equal to 9 diagonals. Isn't that easy? Super easy? Easy peasy lemon squeezy? Yes? Okay. So therefore, there are 9 diagonals in a regular
hexagon. I hope you have boomed it. Do let me know in the comment section if you have any problem in this question. So guys, according to the third part, it is asking you how many diagonals have in a triangle. है ना? तो मुझे पता है triangle does not have a diagonal, right? So therefore, zero diagonal. Alright, so let's see what are the problems which you face. That is, मैम डाउट्स नहीं सॉल्व होते है ना, डाउट्स नहीं सॉल्व होते मैम, नोट्स की बहुत प्रॉब्लम है मैम, टेस्ट और असाइनमेंट नोट्स मिल भी जाते हैं, टेस्ट और असाइनमेंट मिल भी जाते हैं, बट उसकी प्रॉपर चेक की मतलब वेरीफाई करने के लिए कोई नहीं है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। चॉइस ऑफ शेड्यूल मैम कहाँ से कैसे, है ना, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। चॉइस ऑफ लैंग्वेज भी हमारी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इन सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है वेदांतु प्रोलाइट सब्सक्रिप्शन। सो यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स एज योर बोनसेस। क्या मिलेगा? अनलिमिटेड लाइव क्लास, माइक्रो और क्रैश कोर्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट और पर्सनलाइज अटेंशन भी मिलेगी टीचर्स की, ठीक है। सो जस्ट विजिट दिस लिंक, ठीक है, और यू हैव टू चूज योर ग्रेड एंड जस्ट सेलेक्ट योर टारगेटेड एग्जाम। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, देन यू हैव टू चूज योर प्लान फॉर 1, 3 और 6 मंथ्स। सो गाइज 6 मंथ्स में 48% डिस्काउंट है, प्लस if you use this code 80 Pro, जो आपको पता है 80 Pro, and you will get additional discount. So just use this link and use the code that is 80 Pro. चलो आजा फटाफट से इस क्वेश्चन को बूम कर दे मिलके। You have to determine the number of sides in the polygon where the exterior and anterior angle are in the ratio 1 and 5. So we know if we have the angles in the ratio, we have to convert into x form. So 1x and 5x, 1x हो गया interior, 5x हो गया exterior. So let n be the number of sides of the polygon. ठीक है, सबसे पहली statement you have to write let n, क्योंकि आप मान रहे हो कि वो n होगा. Then you are letting that x and 5x be the exterior and interior angles because they are in the given in the ratio 1:5. Yes, 1:5. So 1x plus 5x हो गया exterior और interior angle. अब एक बात हमें पता है, the sum of interior and the corresponding exterior angle is 180 degree. तो ये हमारा exterior, ये हमारा उसी का interior. So x plus 5x हो गया आपका 180 degrees. ठीक बात है, इतना क्लियर है। तो x plus 5x 6x is equal to 180. So x will be equal to 180 upon 6 will be equal to 30 degrees. Okay, so now you have got one exterior angle, that is x right now. So sum of exterior angle, all the exterior angle would be, sum of all the exterior angle would be x, that is one angle, and multiplied by number of sides. So 30 into n, that is 30n. Now we all know that sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. So therefore 30n will be equal to 360 degree. So can you find out the value of n here? So 30 को इधर ले जाओ RHS में, 360 divided by 30 will be equal to 12. Isn't that easy? Easy peasy lemon squeezy? Yes? Boomed it? Do write down boom in the comment section so that I can know you have understood this. And if you have any problem, do write down in the comment section. So guys, this is the next question you have to move. Find the number of sides of a regular polygon when each its angle has a measure of 160, first part, and in second part it is 135. How to find the number of sides when each angle of that regular polygon is given to you, that is 160 degree. चलिए फर्स्ट पार्ट को बूम कर दें। देखो, each angle, interior angle given to you, that is 160 degrees. So to find the each interior angle of a polygon, we have a formula. सबको पता है ना, सारे पायलट्स को पता है ना, n minus 2 multiplied by 180 degree upon n, and it is being given to you, that is 160 degree already in the question. ठीक है, अब इसे फटाफट से बूम कर दो। क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, 180n minus 360 is equal to
160 डिग्री, और ये यहाँ पे ये जो डिवाइड में n था इसको इधर ले जाओ RHS में, सो 160 n बन गया। ठीक है, अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये n वाली टर्म्स को एक तरफ रख लो और ये नॉर्मल वाली नंबर्स को RHS में ले जाओ। सो 180 डिग्री n माइनस 160 डिग्री n इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये माइनस का था तो इधर प्लस में, ये वाला प्लस में था तो इधर माइनस में, हो गया ना सिंपल। 180 माइनस 160 20n इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब n विल बी इक्वल टू 20 इधर ले जाओ, 360 डिग्री अपॉन 20 ये गया और आंसर इज इक्वल टू 18। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 18। अब 18 का मतलब number of sides in the regular polygon is 18 where each interior angle given to you that is 160 degree। ठीक है, अब यहाँ पर देखना फटाफट से, फर्स्ट पार्ट आपने बूम कर दिया मेरे साथ मिलके, है ना, एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। I know my pirates can do this, so definitely I am going to give you in the homework. You have to boom this and do let me know how many number of sides are there when interior angle of the regular polygon is 135। क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर देना। क्या फॉर्मूला है आपके पास, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन n, और इसका मतलब ये है 135। बस n की वैल्यू निकाल के मुझे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर। फॉरगेट अबाउट नेमिंग इन द नेक्स्ट सेशन, मुझे आंसर चाहिए आप सबके। यू कैप्टन वॉन्ट्स इट, ओके, सो दैट आई कैन नो हाउ मेनी पायरेट्स नो द आंसर। समझ आ भी रहा है या नहीं? ठीक है, ये अगला क्वेश्चन। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, ठीक है, और CO and DO आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल C and D। जब बाइसेक्टर बोल दे, ये देखो CO and DO ये बाइसेक्टर है एंगल C के और D के, मतलब CO बाइसेक्टर है एंगल C का, ये देख रहे हो आप, ये लाइन जो जा रही है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और OD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, मतलब ये एंगल हो गया इस एंगल के इक्वल। हो गया ना सिंपल, बस कुछ नहीं करना है, आपको एक इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है। COD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A एंड प्लस हाफ ऑफ एंगल B, मतलब सम ऑफ एंगल A प्लस सम ऑफ एंगल A एंड B इज डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, क्या करना है, प्रूफ करना है इसे। आज फटाफट से प्रूफ करते हैं, कुछ नहीं करना गाइस, बहुत ध्यान से समझना। वी नो दैट COD मतलब ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ OCD मतलब ये एंगल प्लस ऑफ ये वाला एंगल ODC। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? Because we have this a triangle and the sum of angles property says that all the sum of angles of the triangle should be equal to 180 डिग्री। तो इसका सम 180 हुआ, तो आप अगर इसको निकालने बैठोगे तो 180 में से इस एंगल को और इस एंगल को माइनस कर दोगे। ठीक बात है, वही लिखा है 180 डिग्री माइनस दिस एंगल एंड दिस एंगल, 180 डिग्री माइनस OCD प्लस ODC। ठीक है, इन दोनों के सम को एक साथ माइनस किया है 180 डिग्री से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। देखें, देखो, अब आपको ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी इक्वल होगा। तो क्या आप OCD को, मतलब लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ग्रीन पेन ले लें, चलो ग्रीन ले लेते हैं, है ना। देखो, क्या आप कह सकते हो ये एंगल हाफ ऑफ होगा पूरे एंगल C के, ये एंगल हाफ होगा पूरे एंगल के, हाँ कह सकते हो ना, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल थे। बिल्कुल वही किया है। उसी तरीके से इस पूरे एंगल D का ये पूरा एंगल हाफ होगा
बस वही किया है गाइस। देखो, हाफ ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी, आप इसको हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल डी भी लिख सकते हो। इस एंगल को हाफ ऑफ एंगल सी एंड प्लस ऑफ एंगल डी। ठीक है, अब थोड़ा सा और ट्विस्ट करके इसको लिख रहे हैं। बात वही है, वी आर गोइंग टू ट्विस्ट दैट। देखना अभी, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है सम इंटीरियर एंगल्स का, सबको पता है। तो हमने क्या किया, एंगल सी और एंगल डी को ट्विस्ट करके लिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की टर्म्स में। सो 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, तो बचेगा क्या, सी और डी, एंड वो हाफ तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, कुछ नहीं किया, बस ट्विस्ट कर दिया क्वाड्रिलेटरल की टर्म्स में। अब आ जाओ, अब क्या किया, 180 डिग्री माइनस ऑफ 180, इसको सॉल्व कर दिया। ये 360 डिवाइडेड बाई 2 180 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। अब 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कट गया, जीरो हो गया, बचा गया हाफ ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ये हो गया। तो क्या ये आपको आरएचएस नहीं मिल गया? देखो जरा, half of angle A and angle B. I hope it is clear to everyone. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, proved. Isn't that amazing? है ना amazing? Just write down boom, क्योंकि ये बहुत important question है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 angles of a quadrilateral are equal. अच्छा, 3 एंगल एक क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन है, इक्वल है, एंड फोर्थ एंगल का मेजर है 150 डिग्रीज। तो आपको बताना है ईच एंगल का मेजर, मतलब एक एंगल मान लो 150 है तो बाकी तीनों का क्या मेजर है ये बताना है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो आप मान लोगे एक एंगल हो गया x। अच्छा, तो एक एंगल जो बचा है वो x है, तो बाकी तीनों तो इक्वल हैं। तो मान लो, लेट मी टेक ब्लैक, मान लो ये 150 है, तो ए डी सी तो इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर ए एक्स माना तो डी भी एक्स हो गया और सी भी एक्स हो गया। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 150 क्या हो गया, 360 डिग्री। तो वही तो लिखा है, 150 प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री 360। तो 3x x x x 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, माइनस कर दो 150, ले गए उधर आरएचएस में, तो ये हो गया 210 और इस 3 को इधर ले आए डिवाइडेड बाय 3। सो 210 डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग बट 70 डिग्री। अगर एक x 70 है, अगर एक x 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हुआ और ये भी 70 डिग्री हुआ। मजा आया ना? राइट डाउन बूम इफ इट इज बूम बाय यू आल्सो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अगर मेरे से सॉल्व करने के पहले आपको आंसर पता था तो अपना नाम बताना मुझे, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल्स मार्क्ड विद द क्वेश्चन मार्क शोन इन द फिगर। यार ये फिगर दिख रही है आपको, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसके एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, कर दें? आ जाओ, पहले मैं सॉल्व करने के पहले कुछ क्लैरिटी दे दूं आपको। देखो ये येलो वाला जो क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है ना क्वेश्चन मार्क में, इसमें क्या आप एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, है ना? निकल गया ना, क्योंकि ये जो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको दिया ही था 40 डिग्री, तो ये तो निकल ही जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया ECB, ठीक है, ये वाला प्लस CBE, ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला, एंड BEC, this 90 degree will be equal to 180 because of angle sum property of the triangle. So 40 plus 90 plus ECB is equal to 180 और फिर ECB हो गया आपका 50, ठीक है? 40 और 90 माइनस कर दिया 130 180 में से, so you got 50 as the answer. अगर भाई ये आपको 50 मिल गया है, अब आप ध्यान से देखो, क्या ये आपको एक पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा?
दिख रहा है ना? सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो भाई एंगल बी अगर 50 है तो एंगल डी कैसे बच सकते हैं? ये भी तो 50 डिग्रीज होंगे। हो गया सॉल्व? Boomed it? Do write down if it is boomed by you. Okay, so guys, this is the challenge time. Come on everyone, accept my challenge and let me know the answer of this question in the comment section. So this is the challenge of the day everyone. In the figure, the bisector of angle A and angle B meet at a point P. If angle C is 100, D is 50, find the measure of angle APB. Come on everyone, solve this question and do let me know the answer. So guys, this is the homework time. Boom this question everyone. मुझे पता है मेरे पायरेट्स कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, इसको भी बूम कर देना फटाफट से, इसको ऐसे मार के फटाफट से मुझे आंसर कर देना इन दी कमेंट सेक्शन. इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, बहुत सिंपल है. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, आ जाना इधर टेलीग्राम में, आई विल गिव यू द हिंट. ओके, so everybody who haven't joined the telegram group, come on, what are you waiting for? Just join the telegram group and we will interact there also. So guys, this is the homework and challenge. You have to boom it and let me know the answer in the comment section. So guys, if you are interested in the pro subscription, you have to select your grade, select your targeted exam. ठीक है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन और 3 ऑप्शंस है आपके पास. जस्ट विजिट दिस लिंक टू गेट दिस ऑफर एंड अप्लाई द कूपन कोड. क्या है? 80 प्रो. ओके गाइस, सो आई वांट टू टेल यू, ये आपके ऑफलाइन ट्यूशन से भी सस्ता है. हाउ? You are getting SST, you are getting English, you are getting maths, you are getting science with all the things. Doubts भी solve हो रहे हैं, मास्टर टीचर्स भी आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं, you are getting notes, you are getting choice of schedule, choice of language, everything you are getting. Unlimited time आप ले सकते हो क्लासेस डिफरेंट टीचर्स से, कहीं नहीं मिलेगा. यस, तो थैंक यू सो मच गाइस. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना फटाफट से. ठीक है, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय गाइस, विल सी यू टुमारो.